وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ حضرات کبھی خاموش ہو جاتے ہیں, کبھی خوب اچھل اچھل کے بولتے ہیں. علیم الدین بھائی پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ محفل میں کوہرام برپا ہے. علیم الدین بھائی بیٹھ گئے تو سب آپ لوگ بھی بیٹھ گئے, خاموش ہو گئے. یہ ماحول بنا کے نہ رکھیں. محفل میں خاموش بیٹھنا کیا یہی دستور ہے؟ باری میری ہے تو میں ہی کچھ آپ کو سناؤں. محفل میں خاموش بیٹھنا کیا یہی دستور ہے؟ میں اکیلا جان دے دوں کیا تمہیں منظور ہے؟ منظور ہے دادا. میں اکیلا جان دے دوں کیا تمہیں منظور ہے؟ اور کیا کہوں کس سے کہوں ذہن ہی مدہوش ہے. کیا کہوں کس سے کہوں ذہن ہی مدہوش ہے. کچھ لوگ سو رہے ہیں باقی سب بے ہوش. کچھ لوگ سو رہے ہیں باقی سب بے ہوش ہیں. ایک شعر میں پڑھتا ہوں, سنیں اور آپ حضرات غور سے سنیں. میں کچھ آپ کے سامنے عشق اور محبت کی کچھ باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. علی جناب شمیم صاحب دیار مدینہ دیکھ کر آئے ہیں اور سنا ہے ان کے تعلق سے بار بار مدینہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. لیکن میں ایک یہاں پر ایک گزارش اور کروں گا. پہلے ایک گزارش پیش کر دوں, اور اہل بستی والوں کے لیے بالخصوص یہ چیز ہے کہ میں جب سے آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ مدرسہ کے طلبہ حضرات پڑھ رہے ہیں اور ہمارے قاری علیم الدین صاحب نے اچھی تربیت دی ہے. اور ہونا بھی چاہیے, ہر ایک استاذ کو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے دے کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے. اور علم اتنا بے حد ضروری ہے. اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو اس کو دنیا اندھی نظر آئے گی. دنیا اندھی نظر آئے گی. علی جناب نیاز صاحب, ذیشان بھائی, سب لوگوں سے میں گزارش کروں گا, میں بار بار کسی کا نام نہ لوں کیونکہ وقت کی بچت ہوگی. کم وقت دیا گیا ہے. وقت ہوتا تو میں کچھ اور بات بڑھا کے کہتا, لیکن میں گزارش کروں گا کہ ابھی تو قاری علیم الدین صاحب 2-4 بچوں کو لے کر مدرسے میں ہیں, پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. میرا دل, میرا ایمان اور میرا جذبہ کہتا ہے اگر بات آپ کو اچھی لگ جائے تو اس بات پہ عمل بھی کیجئے گا اور خدا کی رضا کے لیے سبحان اللہ بھی کہہ لیجئے گا. کیونکہ ابھی یہ بچے مسجد میں رہ رہے ہیں, ابھی یہ بچے مسجد میں رہ کر علم حاصل کرتے ہیں. کاش شمیم بھائی کا ہاتھ لگ جائے, نیاز بھائی کا ہاتھ لگ جائے, ذیشان بھائی, ظہیر بھائی کا ہاتھ, پورے بستی والوں کا ہاتھ لگ جائے. اگر اس بستی کے اندر چھوٹا سا دارالعلوم اگر قائم ہو جائے تو انشاءاللہ اس بستی میں 4 چاند مل جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت. کیونکہ یہ بچے جو دین کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ وہ طالب علم ہیں کہ میں ان کی فضیلت کیا بتاؤں. اس سے پہلے آپ حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شعر سنیے. سرکار کے تلووں سے جب لگا پانی, سرکار کے تلووں سے جب لگا پانی, لگا کہ کوثر و تسلیم ہو گیا پانی. اگر آپ بھی پانی پانی ہو جائے تو بول دیجئے, کچھ نہیں بولیں گے. ارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے. دنیا میں اگر آپ نے پیڑ لگایا ہے, آم کا پیڑ, امرود کا پیڑ لگایا ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ 10 سال 15 سال کے بعد میں یہ پیڑ تیار ہو جائے گا. اور جب پیڑ تیار ہوگا آپ کو یہ بھی علم نہیں ہے, آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے, پتا نہیں اس پیڑ کا پھل آپ کو کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں, اس سے معلوم کر سکتے ہیں. جب کوئی بندے مومن رسول اللہ کے عشق میں ڈوب کر رضا الہی کے خاطر اگر ایک مرتبہ
क्या करना है मदरसा सिखाएगा, और दोस्तों के साथ में कैसे व्यवहार करना है मदरसा सिखाएगा, और तुम्हें यही तक महदूद नहीं है उस्ताद की कदर कैसे पता चलेगा ये मदरसा सिखाएगा। यही तक महदूद नहीं है प्यारे भाइयों, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्जिद क्या सदा लगाती है, ए नमाज पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने आया है तू, पहले अपनी पाकी देख ले, अपनी नापाकी देख ले, अपना कपड़ा देख ले, अपना लिबास देख ले, अपना तरीका देख ले, फिर उसके बाद में मस्जिद में आना। जब ये मस्जिद का मामला आएगा तो मस्जिद सदा लगाएगी, ए मस्जिद में आने वाले पहले तू गुस्ल का तरीका सीख के आ, मस्जिद में आने वाले पहले जो है नमाज का तरीका सीख के आ, मस्जिद में आने वाले पहले गुस्ल का तरीका सीख के आ, वजू का तरीका सीख के आ, नमाज़े वजू कितने हैं ये सीख के आ, वाजिबात नमाज कितने हैं इसको सीख के आ, फराइज़ नमाज कितने हैं इसको सीख के आ, शराइत नमाज कितना है इसको सीख के आ। आलम तसव्वुर में मैंने मस्जिद से कहा ए खुदा का घर ये बता, ए खुदा का घर ये बता, ए खुदा का घर ये बता, मैं कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, हमें ये इल्म कहाँ से मिलेगा, हमें ये दर्स कहाँ से मिलेगा। मैंने जब मस्जिद से कहा ए आलम तसव्वुर में ए खुदा का घर ये बता, मैं मस्जिद में आना चाहता हूँ, ये तरीका हमें कहाँ मिलेगा, तो आलम तसव्वुर में मस्जिद यही जवाब देगी। एक गुंडा सर के अहले सुन्नी हज़रात सुने जरा गौर से, मस्जिद आपकी मस्जिद जो है यही सदा लगाएगी, ए आने वाले मस्जिद में इल्म हासिल करके आने वाले और मेरे घर में आने वाले आपको आना पड़ेगा, पहले अलीमुद्दीन साहब के पास जाना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा, वजू का तरीका अलीमुद्दीन सिखाएंगे, वजू का तरीका अलीमुद्दीन सिखाएंगे, फराइज़ का तरीका अलीमुद्दीन सिखाएंगे, शराइत का तरीका अलीमुद्दीन सिखाएंगे। अलीमुद्दीन साहब अपने घर से नहीं सिखाएंगे बल्कि मुस्तफा के घर में बैठकर सिखाएंगे, मदरसे में बैठकर सिखाएंगे, मदरसे में बैठकर सिखाएंगे, घर में बैठकर नहीं। जब मदरसे में तशरीफ दीजिए, मदरसे में बैठकर सिखाएंगे, और जब मदरसे में बैठकर सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, तालिब इल्म है, बच्चा जब इल्म हासिल करने के लिए आया है, माँ ने कहा ठीक है डांट के भेज दिया है, बच्चा नाक बह रहा है, मदरसा पहुंचा दिया है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, वक्त कम है, बड़ी तेजी के साथ बोल रहा हूँ, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए प्यारे भाइयों। अब बात यही तक महदूद नहीं है, बच्चा मदरसा में आएगा और इल्म हासिल करने के लिए माँ बाप भी कैसे माँ बाप है, जब स्कूल पहुंचाते हैं बच्चे को तो क्रीम पाउडर लगा के फिर बच्चे क्रीम पाउडर लगा के पहुंचाते हैं, अच्छा लिबास पहना देते हैं, सर में तेल लगा देते हैं, आंखों में सुरमा लगा देते हैं, फिर स्कूल पहुंचाते हैं। अरे स्कूल बाद में पहुंचाओ, पहले मदरसा पहुंचाओ, पहले इल्म हासिल करो। बाप का अदब कैसे करेगा ये मदरसा सिखाएगा, बाप की कदर कैसे होगी मदरसा सिखाएगा। जब मदरसे में आएंगे नमाज़े वजू कितने हैं, वजू किन किन चीजों से टूट जाता है मदरसा सिखाएगा, वजू कितने चीजों से टूट जाते हैं ये मदरसा सिखाएगा। नमाज में अगर कोई गलती आ गई है और नमाज कैसे दुरुस्त होगा ये मदरसा तुमको सिखाएगा। अगर तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए हैं, अगर आपका लिबास पाक नहीं है, आप गुस्ल भी पाक नहीं करना जानते हैं, आपको जो गुस्ल जनाबत भी पता नहीं है, तो आपको मदरसा सिखाएगा। और जब मदरसे में इल्म हासिल करेंगे, जब मदरसे में इल्म हासिल करेंगे, फिर जब मदरसे में इल्म हासिल करेंगे तो खुदा का घर कहेगा अब तू अगर मदरसे में इल्म हासिल करके आ गया है, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तू इल्म हासिल कर लिया है तो मस्जिद का अदब कैसे है तुझको पता चल गया है, मस्जिद में सजदा कैसे करना है तुझको पता चल गया है, मस्जिद में रुकू कैसे करना है तुझको पता चल गया है, मस्जिद में कैसे सजदा करना है तुझको पता चल गया। ए भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, जरा गौर करो, अपने घर से कोई सीख के नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के घर से सीख के आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कारी रईस साहब किबला, कारी रईस साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर जमीन नासर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब किबला, आप भी मदरसे में तालीम हासिल किए होंगे, आप भी तालीम हासिल किए होंगे। शमीम भाई आप भी मदरसे तालीम हासिल किए होंगे। भाई कुछ नहीं, मैं जानता नहीं हूँ आपके ताल्लुक से, लेकिन तारीफ आपकी सुनी है। आप मदरसा गए होंगे, कम से कम कायदा अलिफ बा ता सा पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे हाथ उठा के बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अलिफ बा ता सा पढ़ा आपने, गलती निकली, उस्ताद ने छड़ी मारा कि नहीं मारा? वो बोलो मारा कि नहीं मारा? अच्छा मारा तो हंसे थे कि रोए
रोए थे हंसे थे कि रोए थे? अरे जोर से बोलो। रोए थे हंसे थे कि रोए थे? रोए थे क्यों रोए थे? तकलीफ चोट लगी तभी तो रोए थे। हाँ चोट लगी तभी तो रोए थे। अरे हम कैसे आशिक़े रसूल हैं, नबी का जिक्र हो रहा है, नबी का नाम लिया जा रहा है, नबी का नाम लिया जा रहा है, नबी की नाम सुनाई जा रही है, नबी का जिक्र किया जा रहा है। अरे वाकई में आशिक़े रसूल हो, दिल में अगर चोट लग रही है तो खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि मुस्तफा के परचम को लहराएंगे और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और अलीमुद्दीन साहब का साथ देंगे। अरे अलीमुद्दीन साहब, अभी तक आप 10, 15, 20 बच्चों को पढ़ाते थे, आप पढ़ाते थे, 1-2-4 बच्चों को पढ़ाते थे, 2-4 बच्चों को नाच पढ़ना सिखा दिया है, बयान करना सिखा दिया है। अब आपसे गुजारिश है, आप अलीमुद्दीन साहब के पास आएंगे। हुजूर, आज हमने बड़ा जलसा किया है, उलमाए कराम के बड़े बड़े को बुलाया है, लेकिन हम अपने बच्चों को अब ऐसा तालीम दिलाएंगे, किसी बच्चे से तकलीफ करवाएंगे, किसी बच्चे से नाच पढ़वाएंगे, किसी बच्चे से वाजिबात नमाज सिखाएंगे, किसी बच्चे को शरायत नमाज सिखाएंगे, किसी बच्चे को वाजिबात नमाज सिखाएंगे, शरायत नमाज सिखाएंगे, किसी बच्चे को वजू का तरीका सिखाएंगे, किसी बच्चे को गुस्ल का तरीका सिखाएंगे, किसी बच्चे को वजू का तरीका सिखाएंगे। और जब वजू का तरीका सीख के बच्चे इस मिंबर पे आएंगे और जब यहाँ से पैगाम सुनाएंगे, वजू का तरीका छोटे छोटे बच्चे बताएंगे, गुस्ल का तरीका छोटे छोटे बच्चे बताएंगे, और जो है अदब का तरीका बच्चे बताएंगे। तकलीफ करके माँ बाप को उस्ताद दादा कैसे होगा, ये जब बच्चे बताएंगे, आप बड़े बड़े जब आएंगे सुनने के लिए, और जब आपका बच्चा इस मिंबर पे बैठकर जब नबी की अज़मत को बयान करेगा, को बयान करेगा, हुस्न को बयान करेगा, तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और यही कहेंगे कि अलीमुद्दीन साहब, आपने इल्म का जब ये आलम है तो आपके उस्ताद का इल्म का आलम है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत कारी कमरुद्दीन साहब किबला, कारी कमरुद्दीन साहब किबला, सरज़मीने कुंडासर। वाह वाह वाह। इल्म हासिल करना बेहद जरूरी है। आज बच्चा बाप की कदर नहीं करता है, आज बेटा बाप की मौजूदगी करता नजर आता है, आज बेटा भाई का हक मारता नजर आ रहा है, एक भाई दूसरे भाई को सता रहा है, एक भाई दूसरे भाई को परेशान करता है। ये भाई भी कैसा भाई है जो जब छोटे छोटे थे, 5 साल के 7 साल के थे, अगर कोई पड़ोसी का बच्चा मारता था तो दूसरा भाई दौड़ के जाता था, उसका गिरबान पकड़ता था और कहता तूने मेरे भाई को कैसे मारा है, क्यों मारा है। लेकिन जब यही भाई 40 साल का हो जाए, यही भाई 30 साल का हो जाता है, मोहल्ले वाला जब उसका गिरबान पकड़ता है, उसको मारता है, तो भाई शाबाशी देता है, मार और मार, मैं निपट लूंगा। और तू कैसा भाई है, मारने के बाद में तुम मुस्तफा को क्या जवाब देगा। प्यारे भाइयों, हसन हुसैन भी है, भाई भाई है, भाई भाई है, दोनों भाई में अनबन हो गई है, दोनों भाई में जब अनबन हुई है, एक भाई दूसरे भाई से बोलने का नाम नहीं ले रहा है, हसन हुसैन से नहीं बोल रहे, हुसैन हसन से नहीं बोल रहे। इतने में मामला क्या हो गया, फातिमा से हजरत हसन ने कहा ए अम्मी जान, हुसैन नाराज है, बात नहीं कर रहे हैं। फातिमा ने बुलाया, बेटा हुसैन इधर आओ, एक चाटा गाल पे लगाया और कहा तुम भाई भाई से नाराज होते हो, एक पैगाम देना चाहता हूँ, प्यारे से गौर सुने, एक पैगाम देना चाहता हूँ। शमीम भाई मदीना गए हैं, देख कर आए हैं, मदीना छोड़ना बड़ा मुहाल है, मदीना कोई छोड़ नहीं सकता है। ए लोगों सुनो, जब उस वक्त आलम होगा, इमाम हुसैन को बुलाया पास में और कहा बेटा सलाम करो। कहा अम्मी मैं सलाम ना करूंगा। कहा सलाम करो। कहा सलाम ना करूंगा। कहा सलाम करो। कहा अम्मी मैं सलाम ना करूंगा। ये नक्श जो है लेकर जाए, एक यहाँ से पैगाम लेकर जाए, ये अलीमुद्दीन साहब ने प्रोग्राम करवाया, अली कमेटी हजरात ने प्रोग्राम करवाया, सारे बात भूल जाना, एक बात लेकर यहाँ से जाना कि भाई भाई की मोहब्बत कैसी होती है, हसन हुसैन से सीखेंगे। तब इतना कहना रहता है, हजरत हुसैन ने कहा अम्मी मैं सलाम ना करूंगा। कहा क्यों सलाम नहीं करोगे। कहा वजह ये है कि मेरे नाना जान ने फरमाया है। क्या बोलो यार, मेरे नाना जान ने मेरे नाना जान ने फरमाया है कि अगर दो भाई में झगड़ा हो जाए, दो भाई में झगड़ा हो जाए, जो भाई पहले सलाम कर लेगा उस भाई से पहले वो भाई जन्नत में जाएगा। भाई से पहले वो जन्नत में जाएगा। हुसैन छोटे हसन बोले, हुसैन पाक फरमाते अम्मी मेरा भाई हसन बड़ा है, ये दिल को गवारा नहीं कि बड़े भाई से पहले मैं जन्नत में
कम अज कम मुहर्रम के महीने में जब हुसैन का नाम आया करे तो कम से कम हुसैनी किरदार भी अपना लिया करो। क्या बात है, वाह, हुसैनी किरदार भी अपना लिया करो, वाह, 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 क्या बात है। हुसैनी कल्चर भी अपना लिया करो। ए लोगों, आखिरी बात बता के बात को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि जब मदरसे के बच्चे हैं तालीम हासिल करते हैं, यही सरकारी मौलाना तजम्मुल साहब है, ये वैसे आलिम साहब नहीं बन गए हैं, वैसे आवामा बाग के यहाँ नहीं बैठे हैं, मेराज साहब वैसे नदीम साहब नहीं बन गए हैं, अलीमुद्दीन साहब वैसे नहीं बन गए हैं, शमीम साहब वैसे शमीम साहब नहीं बन गए हैं, नियाज भाई वैसे नियाज भाई नहीं बन गए हैं। कैसे बने हैं? जब इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा, उलमा के पास बैठे, सीखा तो कुछ दर्स हासिल हुआ, उलमा की कदर करना इनको याद आ गया, इनको याद आ गया ये ऐसे इल्म नहीं हासिल हुआ है। तुम्हें बता दूं इल्म कैसे हासिल होता है। रात में जब तुम्हारा बच्चा, ठंड का मौसम आता है, जब तुम्हारा बच्चा सो जाता है बिस्तर पे, लिहाफ उठा देते हो, रात में जब तुम उठते हो, जब रज़ाई खुल जाता है, उसका पैर खुल गया है तो आप जाते हो, लिहाफ उसको उड़ा देते हो, कम्बल उड़ा देते हो, आप मोटा मोटा कंबल अपने बच्चे को उड़ाते हो, घर के अंदर जो है गर्म एसियां लगा देते हो ताकि मेरे बच्चों को ठंडक न लगे। लेकिन मौलाना तजम्मुल साहब कितनी मुसीबतें उठाई होंगी जो आज मिंबर पे बैठे हुए हैं, अलीमुद्दीन साहब ने कितना मुसीबत उठाया होगा जो आज मिंबर पे बैठे हैं। वैसे इल्म खुदा नहीं देता है। अरे दुनियादार जब चुनते हैं तो कोई प्रधानमंत्री बनता है, और जब मुस्तफा चुनते हैं तो आलिम दीन बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीने कुन्नास। आलिम दीन बनता है। चलते चलते पैगाम सुनते जाइए। मौलाना तजम्मुल साहब ऐसे मौलाना तजम्मुल नहीं बन गए हैं, पहले तजम्मुल ही थे, नाम इनके माँ बाप ने ही रखा, लेकिन जब मदरसा भेजा होगा हजरत को तो सीने पे पत्थर रखा होगा और अपने सीने पे पत्थर रख के भी भेजा होगा। ये मदरसे में गए होंगे, कारी मेराज साहब मदरसे में गए होंगे। जरा गौर से सुनिए मेरी बात को। आप भी बच्चों को मदरसा पहुंचाते हैं पढ़ने के लिए, इमाम साहब ने एक डंडा मार दिया, शिकायत लेके आ जाते हैं, आखिर तुमने क्यों मारा है? लेकिन मदरसे का माहौल आपको बताता चलूं, क्योंकि जब जो चीज दिल पे गुजर जाती है फिर इंसान उसको हमेशा याद रखा करता है। ये मदीने के मुसाफिर है, मदीने में जो सफर होगा और जो दिक्कतें आएंगी इनको याद है, हर चीज याद है। हजरत वास्ते आलम बना है, उनके पैर में एक जो है कांटा चुभ गया और अंगूठा फूट गया था, और जब वहां से मदीने से वापस आ गए और जब जख्म अच्छा हो जाता था फिर उसी को बेसन और रेजर लेते थे, उसको काट देते थे। मुरीदों ने कहा हुजूर ये जख्म ठीक हो जाने दीजिए। कहा ये जख्म मदीने का जख्म है, ये मदीने का जख्म है, मदीने का, इसको हम ठीक नहीं होने देंगे मरते दम तक, क्योंकि ये मदीने की निशानी है, मदीने की निशानी है। ए लोगों, प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिएगा। मौलाना भाई साहब मदरसे में हासिल किया होगा इल्म, कैसे हासिल किया? तुम्हारा बच्चे का लिहाफ खुल गया, तुमने उड़ा दिया, लेकिन मदरसे में बच्चा सो रहा है और आपका बच्चा 8 बजे तक सोता है, मदरसे का बच्चा 4 बजे रात को उठ जाता है। आप गरम गरम पानी से वुजू करते हैं, आप गरम गरम पानी से जो है नहाते हैं, गुस्ल करते हैं। कभी कभी मदरसे में लाइट नहीं होती है तो जो है ठंडे ठंडे पानी से गुस्ल करना पड़ता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। हमारे तुम्हारे यूपी के अंदर हैंडपंप है, लेकिन अगर कहीं बाहर पढ़ने चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाए, मुंबई चले जाए तो वहां पर हैंडपंप नहीं मिलेगा, बल्कि पानी की टंकी है, उसी से गर्म ठंडा पानी से आपको गुस्ल करना पड़ेगा। ऐसे इल्म नहीं हासिल हुआ है। मदरसे में पढ़े हैं, 2 रोटी अगर मिलती थी तो 1.5 रोटी खाते थे, आधी रोटी शाम को बचा के रख देते थे कि सुबह को वो खाए। पैसा भी नहीं दिया होगा, गरीबी होगी, बाप ने भी इतना पैसा कमा न पाया होंगे, इतनी दौलत भी कमा कर न दिया होगा। आज 2 रोटी मिली है, 1.5 रोटी खाई है, आधी रोटी बचा के रख दिया कि सुबह के टाइम में नाश्ता कर लूंगा, सुबह जब दोपहर में रोटी मिली है असर के बाद आधी रोटी खा लूंगा। ये सोच सोच के फिक्र लगा हुआ है, सबक याद कर रहा है। तुम 2-4 पन्ने याद करते हो, आपका इंतकाल होगा, आप इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, प्रोफेसर बन जाइए, मास्टर बन जाइए, लेकिन इंतकाल होगा। इमाम साहब ये नहीं कहेंगे, शमीम भाई ये नहीं कहेंगे अपनी डिग्री लेकर आइए, बाप के जनाजे पे आप बाप का डिग्री लेकर आइए, जनाजे पे पढ़िए, ये चीज नहीं होगा। होगा तो खुदा का कुरान होगा। है तो जहां में सदाकत कुरान की, एक्शन में साथ देगी तिलावत कुरान की, एक्शन में साथ देगी तिलावत कुरान की। चलते चलते मैं माजरत चाहता
آئے گا, عربی میں حدیث پڑھتا نظر آئے گا, ترجمہ کرتا نظر آئے گا, اردو کا فارسی کا عربی کرتا نظر آئے گا. اے لوگوں, آج ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں, ان کی عزت کرنا نہیں جانتے ہیں. اے لوگوں, کم از کم ان کے یہ کون سے دولہا ہے, ایسا دولہا ہے, ایسا دولہا ہے. اور تم اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہو, خزانچی صاحب ہیں, ایک ہفتے میں ایک مرتبہ دیکھتے ہوں گے مسجد کو, کوئی جو ہے سیکریٹری صاحب ہے ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں دیکھتے ہوں گے, لیکن امام 24 گھنٹہ مسجد میں ڈیوٹی دیتا ہے, 24 گھنٹہ ڈیوٹی دیتا ہے. لائٹ چلی گئی ہے, بندوبست کرنا پڑے گا. امام صاحب کو کسی بستی میں بلا لیا پروگرام کے لیے, حضرت آپ کو آنا ہے, حضرت تو جا رہے ہیں, فون لگا رہے ہیں, اذان بھی ٹائم سے پڑھ دینا, اذان بھی ٹائم سے پڑھ دینا, نماز بھی ٹائم سے پڑھا دینا, مسجد کا دیکھ بھال بھی اچھے سے کر لینا. آخر یہ جا رہے ہیں, ان کو فکر کیوں ہے؟ فکر اس لیے ہے کہ خدا کے گھر کے نوکر بن گئے, خدا کے گھر کے نوکر بن گئے ہیں. اے لوگوں پیارے بھائیوں, پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ اپنے بچے کو دین سکھائیے. جب بچہ دین سیکھنے مدرسے میں گیا, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال پڑھتا رہا, کچا کھانا ملا تو بھی کھا, استاذ نے مارا تو بھی برداشت کر لیا, بچوں میں جھگڑا ہوا تو بھی برداشت کر لیا. مدرسے میں جب ماں کی یا باپ کی یاد آئی, چھت کے اوپر چڑھ جاتے تھے بچے, رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ماں کی یاد آ رہی ہے, باپ کی یاد آ رہی ہے. 3 سال 4 سال محنت کر کے 10 سال جب بھی مصیبتیں پریشانیاں اٹھا کر پھر یہ مقابل بن گئے, عالم دین بن گئے, نقیب جلسہ بن گئے, شاعر اسلام بن گئے. اور جب دستار بندی ہوئی اور جب دیندار بن گئے, دیندار بننے کے ساتھ ساتھ اب جب منبر رسول پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور پھر کوئی مقتدی کہتا ہے امام صاحب آج تمہیں 2 منٹ لیٹ کیوں آئے ہیں, امام صاحب 1 دن آپ لیٹ کیوں آئے ہیں, اے امام صاحب آپ اتنا لیٹ کیوں آئے, آپ کو ٹائم نہیں پتا ہے. ایک جاہل عالم پر انگلی اٹھاتا ہے. اے لوگوں, پھر بتاؤ اس عالم دین کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ جب تم کو کوئی تکلیف دیتا ہے, آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں شمیم بھائی بات آپ کے دل کو چھو جائے تو صرف آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. آپ یہاں سے مدینہ شریف کئی مرتبہ گئے ہوں گے, آپ کو یہاں جو تکلیف ہوئی ہوگی, سامنے رسول اللہ کا روضہ رہا ہوگا, آپ نے اپنی تکلیفیں وہاں کہی ہے کہ نہیں کہی ہے؟ کہی ہے نا, یہ مدینہ جا کے کہی ہے, مدینہ جا کے کہی ہے. نیاز بھائی, نشان بھائی, جتنے بھی ہیں سب لوگ سنو, آپ کو تکلیف ہوئی آپ نے اپنے گھر میں کہا, بھائی صاحب آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے اپنے گھر میں اپنے دوست کو کہا. لیکن جب کسی امام کو تکلیف ہوتی ہے, جب کوئی اس کو ستاتا ہے, ناحق پریشان کرتا ہے, تو سب لوگ نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں, دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. ٹینشن میں امام کھانا بھی کم کھاتا ہے, بستر پہ جب لیٹتا ہے, لیٹنے کے ساتھ ساتھ پھر دنیا دار کو نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کو یاد, کیا بات ہے, واہ کیا جملہ کری صاحب, واہ مدینے کے تاجدار کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ, میں نے کیا اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ ایک جاہل آ کے مجھ کو ستایا. یا رسول اللہ, آپ نے دین کا رہبر مجھے اس لیے بنایا تھا کہ مسجد کا خزانچی ہو, صدر ہو, وہ آ کے پریشان کرے. یا رسول اللہ, دل تو چاہتا ہے کہ منبر چھوڑ کے جاؤ, کوئی دنیا دار کا کام کر لوں, کیا بات ہے, واہ کوئی دکان کھول لوں, کوئی بزنس کر لوں, لیکن دل میں حدیث سے مصطفیٰ ہے, یا رسول اللہ میں آپ کے گھر چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں, کیسے چلا جاؤں. جب یہ تکلیف ہوگی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فریاد امتی جو کرے حال میں, فریاد امتی جو کرے حال میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر ہو, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اے اللہ کے پیارے محبوب کے دیوانوں,
میرے نبی تمہارے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی جب تو راستہ چلتا ہے تیرے پیر میں ٹھوکر لگتی ہے پیر میں ٹھوکر لگتی ہے تو بعد میں آہ کہتا ہے سب سے پہلے مدینے سے صدا آ جایا کرتی ہے مجھے تکلیف ہو جاتی ہے اے لوگوں کم از کم اتنا سوچے کہ بڑی محنت مشقت سے علم حاصل ہوتا ہے ایک ایک مسئلہ سوچ سمجھ کر بیان کرنا پڑتا ہے اے لوگوں ابھی بھی وقت ہے ان کی قدر کرو ورنہ یہ شعر میں پورا جملہ